Welcome to second chapter of the book First Flight. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is written by Nelson Mandela himself. Apartheid. Apartheid was a system of racial segregation and discrimination where people were divided based on their race and treated unequally. It was officially followed in South Africa from 1948 to early 1990s. Under this system, Africans had fewer rights. They were forced to live in separate areas. They could not use the same public facilities as other people, like the transport, etc. They had limited freedom, including restrictions on movement, education, and jobs. Leaders like Nelson Mandela fought against apartheid, and it was finally abolished in 1994. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and then Nelson Mandela became the first president of South Africa, first black president. Long Walk to Freedom is autobiography of Mandela. It tells the story of his life, his struggles, and his long fight against the system of apartheid in South Africa. The chapter begins with a news item from the BBC, British Broadcasting Corporation, dated 10th May 1994. In this autobiography, Mandela speaks about a historic moment of inauguration. The main idea or the main theme of the chapter is that freedom is not free. It requires sacrifice and struggle to attain. Equality and justice are essential for a peaceful society. Courage means standing up against oppression, and true freedom includes respect for all people and not just political independence. Now let's come to the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Dawned bright and clear का मतलब है दिन की सुबह बहुत ही रोशन, फ्रेश और सुंदर तरीके से हुई. In this passage, Mandela describes the day of his inauguration as a very bright and clear morning, symbolizing a hopeful new beginning. In the days leading up to the event, he was pleasantly besieged, meaning he was surrounded and welcomed by many important dignitaries, and he liked also being surrounded by dignitaries and the world leaders on this occasion who had come to show their respect. He also highlights that this inauguration was the largest gathering of international leaders ever held in South Africa, showing how significant and historic this moment was, but not only for the country but the entire world. इस पैसेज में मंडेला अपनी इनॉग्रेशन के दिन का डिस्क्रिप्शन देते हैं. वो बताते हैं कि 10th मई के दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, जो एक नए बिगनिंग का सिंबल था. पिछले कुछ दिनों से उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स और डिग्नेटरीज इंपॉर्टेंट लोग आ रहे थे जो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते थे. बिसीज्ड मतलब टू बी सराउंडेड बाय समबडी और समथिंग इन लार्ज नंबर्स. लेकिन मंडेला घिरे हुए थे, लेकिन उनको ये अच्छा भी लग रहा था. ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रगल और सक्सेस को दुनिया भर में इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन गैदरिंग था, जहां वर्ल्ड के लीडर्स एक साथ आए थे और पूरी दुनिया इसको इम्पोर्टेंस दे रही थी. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non racial government. Now, an amphitheater is a circular building which doesn't have a roof. ऐसी circular building जिसकी कोई छत नहीं होती है. जैसे suppose करो कोई stadium है जिसका कोई छत नहीं है. With the rows of the seats that rise in steps around an open space. And amphitheaters were used in ancient Greece and Rome. तो वैसा ही कोई एक building था यूनियन बिल्डिंग्स. वैसा ही कोई सर्कुलर बिल्डिंग थी यूनियन बिल्डिंग्स में. एंड sandstone is a type of stone that is formed of the grains of sand. रेत के दानों को, कणों को टाइटली प्रेस करके जो स्टोन बनता है, दैट इज सैंडस्टोन. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर. ऐसे एम्फी थिएटर में जो यूनियन बिल्डिंग के में बना हुआ था, वहां पे सेरेमनी हुई. एंड वो प्रिटोरिया में थी. तो प्रिटोरिया वाज द इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. तो उस प्रिटोरिया सिटी में एम्फी थिएटर में यूनियन बिल्डिंग में ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी.
For decades this had been the seat of white supremacy, मतलब कई सालों तक, कई decades तक ये जगह white supremacy, गोरे लोगों की supremacy और rule का center बनी रही थी. And now it is the site of a rainbow gathering of different colors and nations. मतलब अब वही जगह एक rainbow gathering, अलग अलग रंगों के मिलने का, अलग अलग races के लोगों के मिलने का center बन गई थी, जहाँ different countries और background के लोग एक साथ थे for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. मतलब ये लोग सब यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक लोगों द्वारा चुनी हुई और नॉन रेशियल बिना भेदभाव वाली गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन शपथ ग्रहण के समारोह के लिए इकट्ठा हुए थे. So, this paragraph represents the diverse, multiracial crowd of different nationalities, colors, and ethnicities gathered to celebrate this historic moment at Amphitheatre at the Union Buildings in the city of Pretoria. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Here I is referring to Nelson Mandela. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. He wanted to devote himself to the well-being of the republic and its people. इस पैसेज में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उस सुंदर ऑटम के दिन यानी शरद ऋतु वाले दिन वो अपनी बेटी जिनानी के साथ सेरेमनी में गए थे. स्टेज पर यानी पोडियम पर सबसे पहले FW de क्लर्क को सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई. फिर थाबो हम्बाकी को फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया. जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने और उसकी रिस्पेक्ट करने की कसम खाई और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने देश साउथ अफ्रीका और उसके लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. So confer जो word है उसका meaning क्या होता है? To give somebody a special right or some sort of advantage. This was the part of the speech which Nelson Mandela gave on the morning of the inauguration, and he went there with his daughter and he was standing on the podium. तो लोगों को संबोधित करते हुए इस पैसेज में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था वही बताया गया है. नेल्सन मंडेला अपने इनॉग्रेशन स्पीच का एक पावरफुल मैसेज देते हैं. वो कहते हैं कि जो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं और जो पूरी दुनिया देख रही है उन सबकी प्रेजेंस से नई आज़ादी यानी कि न्यूबॉर्न लिबर्टी को ग्लोरी मिले यानी मान सम्मान मिले और होप भी मिले यानी उम्मीद मिल रही है. ग्लोरी मिले और उम्मीद भी मिले यानी ये सब लोग मिलकर इस नए फ्रीडम को इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दे रहे हैं. आगे वो कहते हैं कि इतने सालों तक चले एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पर अपार्थीड के बारे में बताया गया है. अपार्थीड के द्वारा जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके बारे में वो मेंशन कर रहे हैं. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बाद अब एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जिसमें सब लोग बराबर हो और जिस पर पूरी दुनिया को गर्व हो. Next, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कुछ समय पहले तक वो और उनके जैसे और भी लोग इसी देश में आउटलॉज कहलाए जाते थे यानी कानून के खिलाफ माने जाते थे, क्रिमिनल माने जाते थे. लेकिन आज उन्हें ये रेयर प्रिविलेज, बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने ही देश साउथ अफ्रीका में दुनिया के देशों से आए हुए मेहमानों को होस्ट करें, उनकी मेहमान नवाजी
डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो सभी इंटरनेशनल गेस्ट का धन्यवाद करते हैं कि वो इस हिस्टोरिक मोमेंट में शामिल होने आए, इस हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट बनने के लिए आए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका की ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की जीत है। जस्टिस यानी न्याय की जीत है, पीस यानी शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसानियत की भी जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. एमेंसिपेशन मतलब इट इम्प्लाइज लिबरेटिंग समवन फ्रॉम द पावर और कंट्रोल ऑफ अनदर। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका गॉट लिबरेशन और फ्रीडम फ्रॉम द वाइट सुप्रीमेसी एंड मंडेला mentions this thing in his speech. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है ये जो आज़ादी और इक्वालिटी की जीत हुई है ये इतनी महान है कि इसका इम्पोर्टेंस कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये हमेशा याद रखी जाएगी। लेट फ्रीडम रीन का मतलब है आज़ादी हमेशा रूल करे, यानी हमारे देश में हमेशा फ्रीडम और इक्वालिटी बनी रहे। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका में वो दुआ करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि अफ्रीका पर हमेशा शांति, प्रोग्रेस और खुशहाली बनी रहे। भगवान अफ्रीका के लोगों को हमेशा शांति, प्रोग्रेस और खुशहाली प्रदान करें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये लाइंस नेल्सन मंडेला के स्पीच से ली गई हैं जिसमें वो एक स्पेशल मोमेंट ऑफ इनॉग्रेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो लोग गेस्ट वहां पे आए हुए थे सभी लोग ऊपर स्काई की तरफ देखने लगे और सरप्राइज हो गए जब साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और आर्मी के प्लेन्स एकदम परफेक्ट फॉर्मेशंस में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर रहे थे। ये सिर्फ एक पावरफुल मिलिट्री शो नहीं था बल्कि ये दिखाता था कि देश की आर्मी अब नए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ है, यानी कि वो गवर्नमेंट जो लोगों ने फ्रीली और ऑनेस्टली चूज की है। इसका मतलब ये था कि आर्मी अब किसी एक रूलर या सिस्टम की नहीं बल्कि डेमोक्रेसी और देश के लोगों की है। तो स्पेक्टेकुलर एरे मतलब होता है इम्प्रेसिव डिस्प्ले यूजुअली इन्वॉल्विंग कलरफुल एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले। तो वहां पे स्काई में जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स एकदम परफेक्ट और ब्यूटीफुल फॉर्मेशन में दिख रहे थे जो देखने में बहुत ही ग्रैंड, शानदार और अमेजिंग लग रहा था। एंड ऑ का मतलब होता है एडमिरेशन से, तो गेस्ट इस चीज को ऑ से देख रहे थे। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. They saluted Nelson Mandela. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Bedecked का मतलब होता है to decorate, so it means to decorate someone or something with some things. For example, she was bedecked in gold and jewels. The hall was bedecked with flowers. In this passage, Nelson Mandela tells that the army and police officers had medals and ribbons which was decorating or which bedecked their chests. And a chevron of Impala jets refers to the V-shaped formation of the South African Air Force jets in the sky during the inauguration function. वो कहते हैं थोड़ी देर पहले ही साउथ अफ्रीका के टॉप आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स जिनके सीने मेडल्स और रिबन से भरे हुए थे, डेकोरेटेड थे, जो उनके पास्ट अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी दिखाई। मंडेला को ये बात अच्छी तरह याद थी कि कुछ साल पहले तक यही लोग उन्हें सैल्यूट नहीं करते बल्कि उन्हें अरेस्ट कर लेते क्योंकि वो उनके खिलाफ थे और सिस्टम के अगेंस्ट मंडेला सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स उनको अरेस्ट कर लेते शायद। लास्ट में इम्पाला जेट्स एक वी शेप
फॉर्मेशन में उड़ रहे थे स्काई में, साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग के कलर्स को रिप्रेजेंट करते हुए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। इस कलर का स्मोक ट्रेल बनाते हुए जब जेट्स स्काई में उड़ रहे थे, तो वो साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। The day was symbolized for me by playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelai Africa and blacks singing Diestem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised means to have a very low opinion of, so both the communities, the black and the white, they had very low opinion of each other. That is why there was this discrimination going on. उस दिन दो नेशनल एंथम्स बजाए गए थे, कोसी सिकलेलाय अफ्रीका जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन से अटैच था, उनसे जुड़ा हुआ था, और डाइस्टेम जो वाइट लोगों के पुराने गवर्नमेंट का एंथम था. This highlights the transition from apartheid to a new democratic South Africa. Playing the two anthems, Kosi Sikelelai Africa by the black and Die Stem for the white, symbolize unity, equality, and the coming together of communities after a long history of racial division. ब्लैक लोग डायस्ट्रीम को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ऑपरेशन का सिंबल था. वाइट लोग कौसी सिकलेलाय अफ्रीका को नहीं जानते थे या इग्नोर करते थे, लेकिन वो दिन स्पेशल दिन था क्योंकि वाइट लोग कौसी सिकलेलाय अफ्रीका गाने की कोशिश कर रहे थे और ब्लैक लोग डायस्ट्रीम गा रहे थे. हालांकि दोनों ग्रुप्स को लिरिक्स प्रॉपर्ली आते भी नहीं थे, पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जल्दी ही सबको ये गाना भी याद हो जाएगा. दिस शोज द मूवमेंट फ्रॉम अपार्थीड to a new South Africa where there was equality and freedom for both the communities. By singing each other's despised anthems, whites and blacks showed mutual respect, acknowledging a shared future and the birth of a new, equal, and democratic nation. It showed that both black and white people were now equal citizens, breaking down the old apartheid walls. इसका मतलब था लोग एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, नफरत की जगह रिस्पेक्ट आएगी और देश एक साथ एकजुट हो जाएगा. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. Here I is referring to Nelson Mandela. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन वो बहुत ओवरवेल्म हो गए. ओवरवेल्म होना मतलब टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन कि वो कैसे रिएक्ट करे ये वो समझ ही नहीं पाए. अभिभूत हो जाना. वो बताते हैं कि 20th सेंचुरी के शुरू में एंग्लो बोर वॉर के बाद साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था. Now, Anglo-Boer War में Boers were the descendants of the 17th century Dutch, German, and French Huguenot settlers in South Africa. They were white, so South Africa के white लोग यानी ब्रिटिश और बोर्स जो वहाँ पे थे पहले आपस में लड़ रहे थे, लेकिन फिर बाद में क्या किया उन्होंने उन्होंने अपने डिफरेंसेस को भुला दिया और फिर वो दोनों आपस में एकजुट हो गए. फिर उन्होंने मिलकर एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम था अपार्थीड, जिसमें डार्क स्किन्ड लोगों को डोमिनेट किया गया और उनके राइट्स को भी छीन लिया गया. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. तो अब फर्दर नेल्सन मंडेला बताते हैं जो अपार्थीड का जो सिस्टम क्रिएट हुआ था वो बहुत ही हार्श था, बहुत ही इनह्यूमन था और ऐसा सिस्टम किसी सोसाइटी में लागू हुआ था ये दुनिया ने कभी ऐसा देखा भी नहीं था. मंडेला कहते हैं जो सिस्टम वाइट लोगों ने बनाया था, जो अपार्थीड का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था वाइट लोगों ने, वो दुनिया का सबसे हार्श और इनह्यूमन इंसानियत के खिलाफ सिस्टम था. इसमें ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, उनके राइट्स छीन लिए गए थे. फिर वो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने और उनकी लाइफ के 8th डेकेड अराउंड 80 ईयर्स की एज में ये पूरा सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया. तब एक नया सिस्टम आया जिसमें प्रेजेंट सिस्टम में
जो आया था उसमें इक्वालिटी बेस बना उस सिस्टम का. इट वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड नॉट ऑन द स्किन कलर. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये आज़ादी का दिन अनकाउंटेबल अफ्रीकन पेट्रियट्स के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, अकल्पनीय बलिदानों और स्ट्रगल का रिजल्ट था. उन लोगों ने इतना दुख झेला होगा और इतनी हिम्मत दिखाई थी कि उनका कर्ज कभी भी रिपे नहीं किया जा सकता है. वे खुद को इसका कंटिन्यूटी मानते हैं. मंडेला अपने आप को उन सब फ्रीडम फाइटर्स का सम रिजल्ट मानते हैं जो उनसे पहले स्ट्रगल कर चुके थे. उन्हें लगता था कि वो अकेले नहीं है बल्कि एक ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा है. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी का मतलब है कि फ्रीडम फाइटर्स की जो लंबी और महान लीनियज थी वो अब मंडेला तक आ पहुंची है. अब उनके थ्रू वो स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. सो मंडेला thought that he was in continuation and followed in the footsteps of the पेट्रियट्स. मंडेला को ये भी फील होता था कि वो उन हीरोज को थैंक्स भी नहीं बोल पाए और वो लोग यह नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस का इतना अमेजिंग रिजल्ट निकला है. जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए उससे इतना अमेजिंग फ्रीडम मिली है. मंडेला कह रहे हैं कि आज़ादी उनकी नहीं बल्कि हजारों लोगों के बलिदान का रिजल्ट है और अब वो उन महान पेट्रियट्स की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं. वे कहते हैं फ्रॉम द चैप्टर आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि मंडेला को बहुत खेद है, दुख है कि वो पेट्रियट्स को थैंक नहीं कर पाए हैं एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. रॉट इज द ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड फॉर द for meaning done or achieved. Whatever their sacrifices had achieved, that Mandela was not able to thank the patriots for those. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Policy of apartheid मतलब apartheid का जो सिस्टम था, जो भेदभाव का जो सिस्टम था, इसने बहुत ही गहरा और बहुत बहुत समय तक रहने वाला एक ऐसा घाव लोगों और उनके देश में भर दिया था. All of us will spend years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced. So नेल्सन मंडेला यहाँ पे अपार्थीड पॉलिसी का इफेक्ट समझा रहे हैं उनके कंट्री और उनके लोगों के ऊपर. वे कहते हैं अपार्थीड पॉलिसी ने उनके देश और लोगों के दिल पर गहरा और लंबा घाव कर दिया था, डीप वुंड कर दिया था. वुंड मतलब घाव, और इस वुंड से रिकवर होने में बहुत साल या फिर शायद बहुत सी पीढ़ियां यानी जनरेशन भी लग सकती थी. मतलब ये घाव इतना ही गहरा था और लोगों ने इतनी सफरिंग झेली थी ड्यू टू अपार्थीड. लोगों को सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल पेन भी हुआ था. सोसाइटी में इनइक्वालिटी और हेट्रेड इतनी गहरी हो गई थी कि उससे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा. फिर वो एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताते हैं. इतने सालों के ऑपरेशन यानी जुल्म और ब्रूटैलिटी यानी हिंसा का एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट भी देखने को मिला था. इतने स्ट्रगल ने लोगों में स्ट्रॉन्ग लीडर्स, करेज और यूनिटी भी डेवलप की थी. ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इतने स्ट्रगल के बाद यूनिटी भी डेवलप हुई थी और स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी आए थे, जैसे द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सेसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाउस, द ब्रैम फिशर्स, the Robert Soboquist of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. ऐसे लोग हुए थे जिनके जैसे फिर दोबारा शायद extraordinary लोग ना ही हों. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते हैं शायद इतना ज़्यादा ऑपरेशन यानी कि जुल्म अत्याचार ही लोगों में इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और महानता डेवलप कर सकता है. ग्रेटनेस मतलब महानता, मतलब मुश्किलें ही इंसान को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बनाती हैं. फिर वो अपने देश के बारे में बताते हैं कि साउथ अफ्रीका मिनरल्स और जेम्स, हीरे आदि में बहुत रिच है, लेकिन उनके हिसाब से देश की सबसे बड़ी दौलत है देश के लोग. वे अपने लोगों को ही देश की सबसे बड़ी दौलत मानते हैं.
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but triumph over it. With this, we will end the chapter here only. I will be continuing with the explanation of the next part in the next video. Thank you for watching and please subscribe.